वेट गेन करना फेल्ट लाइक एन एम्बैरेसमेंट कि मैं ही एक अकेली हूँ जिसको वेट गेन का प्रॉब्लम है, वेट गेन नहीं होता या मैं पतली हूँ एंड ऑल दैट, तो वो हेजिटेशन थी, एक एम्बैरेसमेंट थी कि नहीं नहीं सब क्या बोलेंगे या कोई मेरे साथ कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा, Hey everyone, how you guys going? Welcome back to my channel. Now all those who've been following me since the beginning of this channel, you guys know a little bit about me, but बहुत सारे लोग वो हैं जो नए join कर रहे हैं, and plus on top of that I wanted to use today's video to talk a little bit about myself, who I am, why should you follow my content, why should you trust me, why should you trust my process that I talk about on my channel, and how I quit my 9-to-5 job and became a full-time weight gain coach. I wanted to talk everything about all that and how my own weight gain journey led me into becoming a full-time weight gain coach and start a business of my own. I will also be answering some of the questions that you guys asked on Instagram and YouTube yesterday, so stay tuned till the end to get to know me better. So I'll start off with a little background. So of course I'm an Indian. I come from India. I come from an army background. My dad was in the army. I have studied in a lot of army public schools, and of course there was a lot of structure, a lot of discipline. That's how my whole upbringing has been. I did my bachelor's in computer science when I was back home in India, and of course I moved to Australia in 2008 to pursue my master's in human resources. In this phase of my life, when I actually moved out of my home at the age of 20 years, was a complete life-changing experience. Of course there was good, there was bad, a lot of hustle, a lot of hustle. So much changed all of a sudden in your life, and you have no idea, because of course I was completely dependent on my parents, and now I had to do everything on my own. So it was a big change. I appreciate that change now. Of course back in the days it was a lot of crying, a lot of hustling, a lot of challenges. So it wasn't easy, but it was the best period. It made me who I am today. So I'm really grateful of taking that decision. Of course my master's was only for 2 years, but I decided to stay here in Australia, and since 2008 I have worked in hospitality, I worked in retail, I worked in entertainment, I worked in finance. So I have done my bits and pieces here and there, got to learn so much from all of these different kinds of jobs. There was a point in my life where I was actually working 3 jobs at a time. I would finish my first job, then go to the second job directly, then go to the third job directly, and then I'll come home. So I like to believe that I have definitely worked really hard and paid my dues for the past 10-12 years. So it has been a kind of a life. It has definitely gave me the ground that I stand on, because I'm so strong and confident in myself with all the hardship that I've gone through. Now this is also the time where the weight loss, the drastic weight loss in my life happened, because all of a sudden everything changed. I had to manage everything on my own. So within the first year of moving to Australia, I ended up losing more than 10 kilos, right? Which means I was underweight, I was unhealthy, I was not able to stand for long hours, I was living a really bad lifestyle, because of course I literally had no time for myself and to look after my own health and stuff like that. So that's when basically all the weight loss happened, right? I ignored it for a while, of course because life was so busy and priorities were different. Health was nowhere on my priority list, but then of course there came a point where it was just difficult for me to manage, because my health was really bad. And that's when I decided that okay, now I need to do something about it, and that's when I decided to join a gym. So in a way, that weight loss that happened back in the days happened for a reason, and I'm a big believer कि जो भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई reason होता है, right? Basically that was a phase जब मेरा वो weight loss हुआ, then I got into gaining weight. वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा, and then eventually maybe this was last 10 से 12 साल were the years when I was getting prepped up अपना बिजनेस सेट करने के लिए. 10 साल मैंने सिर्फ सीखा, गेन किया, लूज़ किया, फिर से गेन किया, इतना सब सीखा कि देन आई वॉज एट अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट 2020 में दैट आई कुड स्टार्ट माई ओन बिजनेस, रन माई ओन चैनल एंड बी हियर. सो बेसिकली वो वेट लॉस होना एक तरीके से रीज़न ही था कि इन फ्यूचर मैं अपने लिए एक लाइवलीहुड इसी प्रोफेशन में अपने लिए बना सकूँ. 2010 या 11 के आसपास मैंने अपनी वेट गेन जर्नी शुरू की. एक पर्सनल ट्रेनर को हायर किया बहुत थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि उस टाइम पैसे नहीं होते थे. तो जितना भी सीख सकी वहाँ सीखा, थोड़ा बहुत वेट गेन भी किया. लेकिन जर्नी के शुरुआत में ही आई एक्चुअली बिकेम वेरी फॉन्ड ऑफ वर्कआउट. मुझे वर्कआउट्स करके बहुत अच्छा लगता था, स्ट्रेस रिलीज़ होता था, अच्छी फीलिंग आती थी. तो एक पॉइंट के बाद गोल वेट गेन करने का भी नहीं था. आई जस्ट वांटेड टू फिनिश माय वर्क, गो टू द जिम एंड एक्सपीरियंस दैट गुड वाली फीलिंग. आप घर से दूर हो, सब कुछ खुद से मैनेज कर रहे हो, वहाँ पे जिम में जाके आपको बहुत पीसफुल लगता है. व्हेन यू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू आर एबल टू कनेक्ट विद योर सेल्फ. तो जिम जाना मेरे लिए वो पीसफुल टाइम ऑफ माई डे बन गया. बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हाउ डू यू स्टे कंसिस्टेंट. आप इतने बिजी हो, आप टायर्ड फील करते हो, वर्क
स्ट्रेस होता है। काफ़ी लोगों ने ये कल क्वेश्चन पूछा भी है कि इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ होने के बाद किस तरीके से यू मैनेज योर वर्कआउट, या कैसे मोटिवेशन आती है वर्कआउट करने की। नाउ व्हेन इट कम्स डाउन टू मोटिवेशन, ऑफ कोर्स मोटिवेशन कम्स एंड गोज। कोई भी हर रोज़ मोटिवेटेड नहीं रहता कोई भी चीज़ करने के लिए, राइट। हम सबकी लाइफ में स्ट्रेस है, फैमिली से रिलेटेड स्ट्रेस है, बिजनेस से रिलेटेड स्ट्रेस है, जॉब से रिलेटेड स्ट्रेस है, लेकिन उसमें आप इस पूरी जर्नी को किस तरीके से देखते हो? इसको एक टास्क की तरह देखते हो कि अब मैं इतनी टायर्ड हूँ और अब मेरे को वर्कआउट करना है, कांट बी बॉदर टू डू दैट, या फिर आप उसको इस तरीके से देखते हो कि जो सारा स्ट्रेस है, सारा जो टेंशन है आपके दिमाग में और जो बर्डन है शोल्डर्स पे, आप अगर वो 1 घंटे का वर्कआउट करोगे तो आपको बहुत लाइट फील होगा, आपको ये सब कुछ भूल जाएगा एंड यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद योरसेल्फ। आप उस तरीके से लेते हो, तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से लेते हो इस जर्नी को, और वहीं से आपको फिर वो कंसिस्टेंसी, वो मोटिवेशन अपने आप आ जाती है, राइट। बाकी ऑफ कोर्स आप मेरा कोई वीडियो देखोगे, आपको वो 2-3 सेकंड की एक मोटिवेशन और एक फायर फील होगी कि लेट्स गो एंड डू द वर्कआउट, राइट, लेकिन थोड़ी देर बाद वो चली जाएगी, राइट। तो वहाँ पे डिपेंड करता है कि आपको वो चीज़, आपके लिए वो चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है और कितना आप अपने तरफ से वो चीज़ करना चाहते हो, वहाँ से फिर वो कंसिस्टेंसी और वो मोटिवेशन आएगी। मेरी लाइफ में आई हैव ऑलवेज बीन बिजी विद वर्क एंड ऑल दैट, जैसा कि मैंने अभी बताया, 2-2, 3-3 जॉब्स एक टाइम पे करना, 1 घंटे का ब्रेक मिला या 45 मिनट्स का ब्रेक मिला, उसमें भी जो मेरा पहला ब्रेक के 5-7 मिनट में फटाफट से खाना खाया, सीधा उसके बाद ब्रेक में ही जिम चली गई। पता है कि जॉब खत्म करने के बाद दूसरी जॉब पे जाना है, टाइम नहीं मिलेगा, तो ब्रेक में ही 30 मिनट का किया या 40 मिनट का वर्कआउट किया, जाके कर लिया ना। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग बोलेंगे कि खाना खाते ही कैसे चले गए, दैट्स फाइन। उस टाइम पे जो भी कर सकते हो वो करो। ऑफ कोर्स आपको लंच खाने के बाद थोड़ा सा गैप रखना चाहिए ताकि आपका खाना डाइजेस्ट हो सके, फिर आप वर्कआउट कर सको। बट ऑफ कोर्स जब आप ऐसे हसल बसल में होते हो, कई बार यू जस्ट वांट टू गेट थिंग्स डन, यू डोंट केयर कि 1 घंटे का गैप मिला कि नहीं मिला, या पहले वर्कआउट कर लो, उसके बाद लास्ट 10 मिनट जो आपके ब्रेक टाइम का बचता है उस टाइम पे मैं खाना खा लेती थी। तो जो भी है, जैसे भी आप मैनेज कर सकते हो, बेसिकली वो चीज़ आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है उसी पे डिपेंड करता है कि आपकी कंसिस्टेंसी कितनी ज़्यादा होगी, राइट। एज आई सेड, मेरी जर्नी में स्टार्टिंग में ही बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था मेरे लिए वर्कआउट करना, क्योंकि आई यूज टू लव दैट फीलिंग, जिसकी वजह से आई थिंक कंसिस्टेंसी काफ़ी हद तक रही। एंड टू बी ऑनेस्ट, कंसिस्टेंसी बहुत ब्रेक भी हुई। अगर आप मुझे पिछले 2-3 सालों से फॉलो कर रहे हो या यूट्यूब पे, तो आपने मेरी काफ़ी सारी अलग अलग वेट गेन जर्नीज़ के वीडियोज़ भी देखे होंगे, जहाँ पे कुछ फेजेस आते हैं वेयर लाइफ टेक्स ओवर, राइट, और वहाँ पे कंसिस्टेंसी ब्रेक होती ही है, राइट। आप कितना एट द एंड ऑफ द डे यू आर ह्यूमन बीइंग, कितना भी आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग रख लो, कहीं ना कहीं यू समहाउ फॉल ऑफ द बैंड वैगन। और उस टाइम पे देयर इज नथिंग मच यू कैन डू, राइट। यू गेट थ्रू द चैलेंजेस जो लाइफ थ्रोज एट यू, एंड देन यू गेट बैक इन रूटीन, राइट। सो ऐसा नहीं कि कंसिस्टेंसी मीन्स 100% एवरी सिंगल डे यू गोइंग टू द जिम। आज की डेट में भी मेरे साथ नहीं होता है। नाउ आई ऑल्सो हैव अ किड एज वेल, सो हाफ ऑफ माई लाइफ इज रन एज पर हर स्केड्यूल। तो कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि आप हर रोज़ धनाधन बस लगे हुए हो, दैट्स नॉट कंसिस्टेंसी। अगर 1-2 दिन का ब्रेक कहीं होता भी है, हम इतने बिजी हैं, नहीं मन भी कर रहा है जाने का, 1-2 दिन का ब्रेक लेके, देन व्हाट कंसिस्टेंसी एक्चुअल मीन्स इज कि वो 2 दिन के ब्रेक के बाद यू हैव टू गेट बैक टू योर रूटीन। उसका मतलब ये नहीं कि बस 2 दिन का ब्रेक लिया तो वो 2 महीने का ब्रेक बन गया। दैट्स बैड, एंड दैट्स ऑफ कोर्स दैट्स वेयर इट कम्स कि वो चीज़ आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। सब लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे एवरीबडी आज कि हमें वेट गेन करना, वेट गेन करना, वेट गेन करना है, बट वो एक्चुअली आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आप वो कंसिस्टेंसी कमिटमेंट दिखा पाओगे। बहुत सारे लोग हैं जो मेरा प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, मेजरली ऑफ कोर्स मेजर परसेंटेज करके दिखाती है, दे कमिट, बट देयर आर सम पीपल हु फेल टू कमिट। और जस्ट बिकॉज बाइंग द प्रोग्राम डजंट गारंटी कि आपका वेट गेन हो ही जाएगा। आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, आपको अपनी तरफ से कमिटमेंट भी शो करना पड़ेगा। जो करता है उसको रिजल्ट मिलते हैं, जो नहीं करता उसको नहीं भी मिलते हैं। सो इन 2015, जस्ट बिकॉज आई वाज सो क्यूरियस अबाउट नोइंग मोर, आई डिसाइडेड टू डू माई सर्टिफिकेशन। सो आई डिड माई सर्टिफिकेशन इन फिटनेस एंड न्यूट्रिशन। उसके बाद आई थिंक मैंने 1-2 महीने एक जिम में भी काम किया यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। नाउ वर्किंग इन अ जिम इज़ नॉट वेरी सस्टेनेबल हियर इन ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि आपको बहुत सारा रेंट देना पड़ता है उनको। सो बेसिकली जो भी आप क्लाइंट से कमा रहे हो वो एक तरह से आप पूरा जिम को ही वापस दे देते हो, बिकॉज दे चार्ज यू फॉर यूजिंग देयर फैसिलिटी टू ट्रेन योर क्लाइंट्स एंड दोज काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। सो वो ज़्यादा लास्ट नहीं किया, बट इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस, कि हर चीज़ कैसे होती है, क्लाइंट्स कैसे आते हैं एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। सो इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। आई थिंक 2 महीने मैंने जिम में काम किया, एंड आफ्टर दैट आई स्टॉप वर्किंग देयर, क्योंकि वो ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं था। उसके बाद ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। 2016 से 2018 तक, 19 तक भी आई वॉज मोर फोकस्ड टुवर्ड्स पर्सनल लाइफ। अपना खुद का वर्कआउट करती थी, सब कुछ करती थी एंड ऑल दैट, बट आई वॉज लिविंग अ हैप्पी लाइफ। आई गॉट मैरिड, आई हैड अ बेबी, सो I was just busy with all that kind of stuff. इस दौरान भी I lost a little bit of weight during my pregnancy, then I gained it all back.
So you know, it was a bit of a hustle there as well. Anyways, फिर 2018 end and 2019 when I was on my maternity leave, that is the time when I actually wanted to do it, because I knew कि अब मैं घर पे होंगी, you know, I was in India only, and I was like, I'll have all the time to, you know, do something about my, you know, fitness certification. So that was the plan, but of course वो नहीं हुआ, even though I was in India, but of course I was a mother, the, you know, little baby needed me, so I couldn't leave her and, you know, explore my business options. So again उस time पे भी नहीं हुआ. I came back and I started posting couple of videos. I created this YouTube channel pretty earlier on. I think 2017 या 18 में मैंने इसको बना लिया था, because I really wanted to do something about, you know, my fitness certification, कि इसका कुछ तो करना है मुझे. Of course nothing panned out well for me. और जो मैंने एक दो वीडियोस YouTube पे पोस्ट भी किए, वो बस ऐसी रैंडम वीडियो कुछ भी बना के पोस्ट कर दिया, कोई पर्पस नहीं था उन वीडियोस का, राइट. और दिस इज़ वन ऑफ द अदर थिंग्स दैट आई हाईली बिलीव, अगर आपका कोई पर्पस नहीं है जो भी चीज़ आप कर रहे हो, देन इट माइट नॉट हैपन फॉर यू. आप डाल तो रहे हो, उसमें टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, बट इट माइट नॉट कन्वर्ट इनटू समथिंग बिग फॉर यू. And that is exactly what happened. वो videos मैंने randomly post किए, there was no purpose, right? So and of course I took them off after a while, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं उन videos का. But then फिर 2019-20 में I was back to work. I was working part time maternity leave के बाद, and then that was a time where I was, you know, really ready कि मुझे ना अब किसी और के लिए काम नहीं करना है. I want to do something of my own. And at the same time, some major changes happened in my workplace, which really got onto my nerves, and I was like really fed up, and I just didn't want to be there, you know. So it was, those changes in my workplace was basically like a kick on my butt कि अब निकलना है यहाँ से. Because what happens is कि आप प्लान बनाते रहते हो कि कुछ करना है, लेकिन you are still in a job, आपके bills पे हो रहे हैं, आप अच्छा खा पा रहे हो, अच्छा पहन पा रहे हो, तो आपको एक push नहीं मिलता, right? But when, you know, something like, you know, gives you that kick in your butt, वो आपके लिए एक साइन होता है कि अब कुछ करना है, बिकॉज इस टॉर्चर से निकलना है, राइट. दैट वाज द काइंड ऑफ यू नो स्टेट आई वाज इन एट द एंड ऑफ 2019, अर्ली 2020s. इट वाज रियली हॉरिबल. आई वाज काइंड ऑफ गोइंग इनटू डिप्रेशन. हर रोज़ रोना, हर रोज़ कंप्लेन करना, हर रोज़, यू नो, आई वाज जस्ट नॉट हैप्पी ऑल टुगेदर. आई स्टार्टेड लूजिंग वेट अगेन एट दैट टाइम. And then, you know, luckily I have a partner who is not the kind ki agar, you know, I'm crying and all that, he'll be like, oh no, what happened, you know, you're okay and all that. He's not that kind. He was like, look, ya to baith ke roti rahe ya fir do something about it, right? He's that kind of a person. So you know, he's like, you know, take actions, do something about it. Ya to rote raho aise या फिर do something about it, and whatever decision you take, I'm with you. So then I decided कि okay, I'm just gonna leave this job. And the day in 2020 March, I decided that okay, I'm gonna go ahead, have a meeting with my manager, and, you know, hand in my notice. The same day lockdown was announced, COVID happened. So I held back. I was like, okay, अब इस कोरोना काल में अब कहीं और तो जॉब मिलने से रही, so let's continue with this one only. So then that was a bit of a relief कि अब घर से काम करना है. Hopefully things might be a little bit better. So, you know, I held back on resigning and I kept working. Then during this time, you know, of course, a lot of people started posting about fitness. Social media, Instagram was full of fitness content and everything like that. And I was like, you know what? I know this. I have studied this. I know this, and I think this is my chance that I should start posting as well. So मैंने Instagram पे post करना शुरू किया. और अगर आप मेरे March 2020 के videos देखोगे Instagram पे, तो I was pretty skinny, you know, because I had already lost so much weight at that time. I was in depression and all that. So, but I was like, you know what, that's okay. This is going to give me what I need, a cut off from that other part of my, you know, work. So that is exactly what I started. And, you know, again, वहाँ पे भी कोई purpose नहीं था. I was just doing my workouts, I was filming, I was posting, you know, followers आ रहे हैं and all that, you know, that was the whole purpose. कुछ ऐसा नहीं था कि इसको किसी चीज़ में convert करना है, right? Nothing of that sort. And then because I was already filming, I was like, अब film कर तो रही हूँ, why not just make YouTube content as well? So then around May or something, I started posting on YouTube. और अगर आप मेरे YouTube के पुराने वीडियोस जाके देखोगे तो I was talking about how to lose belly fat, ab circuit, और you know how to lose weight and gain muscle. इस तरीके के मैंने शुरुआत में 1-2 महीने इस तरीके के वीडियोस डाले थे. And then suddenly, you know, कहीं से मेरे दिमाग में आया, and you know, not कहीं से, I am a very spiritual person, I believe in God and I pray as well. So you know, this thought process changed कि why are you running behind something जो सब लोग कर रहे हैं? Why don't you share your own story? मेरी weight loss की तो story है ही नहीं, तो why am I talking about weight loss on my channel?
that's when I was like, and to be honest, one of the other reasons why I was holding myself back was weight gain करना felt like an embarrassment कि मैं ही एक अकेली हूँ जिसको weight gain का problem है, weight gain नहीं होता या मैं पतली हूँ and all that, तो वो hesitation थी, एक embarrassment थी कि नहीं सब क्या बोलेंगे या कोई मेरे साथ connect ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर कोई वेट लॉस की बात कर रहा है, हर किसी को बस वेट लॉस का ही प्रॉब्लम है, तो मुझे अपने आप में हेजिटेशन थी कि कैसे होगा या करूँ भी कि नहीं करूँ. बट देन व्हेन दैट थॉट हिट माई हेड, आई वाज लाइक व्हाट, आई डोंट केयर, कोई कनेक्ट करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा, इट्स माई स्टोरी, आई वांट टू टॉक अबाउट वेट गेन. और दैट इज़ व्हेन आई स्टार्टेड फिल्मिंग अबाउट वेट गेन. एंड टू बी ऑनेस्ट, लिटरली आई थिंक 2 या 3 वीडियो डालने के बाद ही सो मेनी ऑफ यू गाइज कनेक्टेड. Everybody was like, so good to find a channel who's talking about weight gain. I also want to gain weight. क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. So I was getting all these comments on my videos and I was like, there you go. I'm getting ideas कि और क्या share कर सकती हूँ. And I could see कि that there is demand. मैं अकेली नहीं हूँ जिसको weight gain करना है. बहुत सारे और लोग भी हैं जिन्हें weight gain करना है. So how about I just share everything that I know, that I've learned, अपने खुद के experience, क्योंकि of course 10-12 साल से I was in the journey of gaining weight and all that kind of stuff. So then I decided to produce more and more content, and there you go, it was just a snowball effect. So many of you guys connected, itne sare messages aate the, you guys started following all the tips and tricks that I was talking about, the workouts I was showing, and you guys were producing results for yourself, and then you were thanking me on YouTube ki we followed your content, or gain ho raha hai, this that, so basically that was the beginning of it all. So basically I found my purpose. So जब मैंने वो कुछ एक videos deliver किए, मुझे response आया, I found my purpose that do help with weight loss. बहुत सब कुछ है weight loss के बारे में YouTube पे, weight gain के बारे में ज़्यादा information नहीं है. I am going to stick to weight gain. That is my whole purpose of YouTube, and you will see कि पिछले 2-2.5 साल से I've been posting videos and I have stuck to weight gain. I don't want to post anything else. I want to be the person who people come to when they want to gain weight the right way, the healthy way, by building muscle and so on. So that's my purpose, and that's what stuck to me, and I stand with it. Uske baad around August or September, although I was working from home as well, I was still in my job, और साथ साथ में ये सब मैं content भी produce करी थी. But then again, August or September, I was like, what, I just can't do this job thing. It was horrible. It was ruining my whole attention and my peace of mind. तो मैं ना workout पे focus कर पा रही थी, ना अपने काम पे focus कर पा रही थी, and then I decided that I'm going to quit my job. Okay, so around September I decided to quit. I gave in my notice, and October 19th was my last day of working for someone else. And thank you so much, God, for giving me the guts to be able to do that. And literally around that time only, 19th of October, that was my last day at work. I took a holiday after that, छोटा सा एक trip किया with my family. And around that time only, a client reached out to me on Instagram and they were like, do you have a program that you sell for weight gain? अप अंटिल दैट टाइम मुझे आइडिया ही नहीं था, मेरा फोकस यूट्यूब पे ही था कि यूट्यूब पे वीडियोस बनाने हैं, वहीं डालना है, एंड दैट्स अबाउट इट. ऑफ कोर्स आई हैड अ पर्पस कि वेट गेन से रिलेटेड ही पोस्ट करना है, बट दैट वाज इट. वहाँ से इनकम कैसे लेनी है या वहाँ से कैसे ग्रो करना है या इस पूरी चीज़ को बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करना है, वो प्लान नहीं था. आई वॉज जस्ट हैप्पी कि जॉब छूट गई मुझसे, एंड देन आई वॉज जस्ट हैप्पी कि आई एम गोइंग फॉर अ हॉलीडे एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ. बट देन विद दिस पर्सन रीच्ड आउट एंड दे वर लाइक, डू यू हैव अ प्रोग्राम? आई मीन दिस पर्सन, जस्ट बिकॉज दे वॉच माई यूट्यूब वीडियोज, दे वर रेडी टू पे मी टू गेट हेल्प. And I was like, hell yes, I have a program to sell, even though I did not have anything. कुछ भी नहीं था मेरे पास, but an opportunity knocked at my door and I just wasn't ready to say no. I was like, yes, I have a program. If you pay me today, I will deliver it to you in a week's time, right? And दैट वॉज इट. कुछ नहीं था मेरे पास, बट आई सैट डाउन. पूरी रात मैंने बैठ के पूरा प्रोग्राम स्ट्रक्चर किया. आई न्यू हाउ टू डू ऑल दिस. ऑफकोर्स मैं अपने लिए स्ट्रक्चर प्लान किया है. जब मैं जिम में काम कर रही थी, अपने क्लाइंट्स के लिए ऑलरेडी प्लान कर चुकी थी, तो मुझे आइडिया था कि कैसे करना है. लेकिन वो मेहनत, लिखना, सब चीज़, वीडियोज़ फिल्म करना, उनको एडिट करना, उनको पोस्ट करना, उनको फिर वो लिंक्स उसमें अपने प्रोग्राम में डालना एंड ऑल दैट, इट वॉज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. बट बिकॉज आई कमिटेड टू समबडी हैड पेड मी ऑलरेडी, आई नीडेड टू मेक श्योर कि मैं एक हफ्ते में उस
उसको डिलीवर करूँ, जो कि मैंने किया। एंड दैट वॉज माई फर्स्ट 6 वीक्स प्रोग्राम जो मैंने लॉन्च किया था बैक इन टूवर्ड्स एंड ऑफ 2020, राइट। दैट वॉज द फर्स्ट थिंग। अगेन कोई प्लान नहीं था, बट फ्रॉम समवेयर ऑफ कोर्स दैट क्लाइंट केम एज अ साइन फ्रॉम गॉड कि दिस इज वॉट यू नीड टू डू, turn this whole weight gain thing into a business, or pursue this as your career. And one of the things how you can do that is by selling a product, by selling a service. And us client ka reach out karna was basically the start of this actual business, jahan pe I was delivering all this free content on YouTube, but at the same time I was delivering customized plans to clients who were ready to pay me and get results. And there you go. After that, rest is history. There's so many transformations. You guys have done amazingly well. I'm so thankful and grateful to you guys for showing all the support. क्योंकि अगर वो support आप लोगों से मुझे नहीं मिलता तो शायद मैं और videos produce नहीं कर पाती। ये चीज़ जो ये snowball effect हुआ है वो हो नहीं पाता, right? So thank you so much for showing all your support. I hope कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला है इस channel से। And of course it's not the end of this channel. मैं कंटिन्यूसली और कंटेंट प्रोड्यूस करती रहूँगी। आई बिलीव इन कॉन्स्टेंट लर्निंग। ऐसा नहीं कि मैंने मेरी सर्टिफिकेशन ख़त्म कर दी है तो आई एम नॉट लर्निंग एनी मोर। आई एम कॉन्स्टेंटली लर्निंग माई सेल्फ एज वेल, और जो मैं सीखती हूँ वो मैं डिलीवर करती हूँ। ऑफकोर्स अपने ऊपर भी ट्राई करती हूँ, एंड देन वेन एवर आई सी के रिजल्ट्स आ रहे हैं किसी चीज़ से, देन आई टॉक अबाउट इट ऑन माई चैनल एज वेल, राइट। सो इट्स ऑल अबाउट लर्निंग एंड मूविंग फॉरवर्ड, एंड दैट्स व्हाट आई से टू यू गाइज एज वेल। ज़रूरी नहीं है कि आपको जिस दिन से आप वेट गेन जर्नी शुरू करने वाले हो उस दिन ही आपको सब कुछ पता होना चाहिए। जितना पता है उससे शुरू करो, एंड देन धीरे धीरे सीखते चलो और इम्प्लीमेंट करते चलो, and that's how you progress, right? So that was a little bit about how it all started, how I quit my job, or now you guys know कि I'm not just a random person. I have actually studied fitness, और तभी मैं अपने learnings तो definitely share करती हूँ जो theory part है, but उसके साथ साथ मेरा जो अब तक का experience रहा है मेरी खुद की weight gain journey में, जो मैं लोगों को train करती हूँ, उनके जो challenges आते हैं उनके हिसाब से जो भी हम solutions ढूंढते हैं उनको implement करते हैं और उनसे उनको कैसे benefit होता है। I talk about all of these things on my channel as well, right? Now theory part of course majorly सबको ही हम उसमें हाँ में हाँ मिलाएगा, बट एक्सपीरियंस जब आ जाते हैं, जो मेरे एक्सपीरियंस है वो शायद आपके लिए काम ना करें, किसी और के लिए करें, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्सपीरियंसेस सही हैं या गलत है, राइट। सो आई नो काफ़ी सारे लोग जो मैं एक्सपीरियंस से रिलेटेड बातें शेयर करती हूँ शायद उस पर अग्री करें या नहीं करें, एंड दैट्स फाइन, इट्स ऑल अबाउट टेस्टिंग एंड ट्राइंग। मेरे एक्सपीरियंसेस अगर आप ट्राई करते हो और आपके लिए काम करते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आपके लिए नहीं काम करते हैं तो आप ये मत बोलो कि वो चीज़ गलत है, बट यू ट्राई समथिंग एल्स, राइट। हालांकि ऐसा कोई ज़्यादा मेरे चैनल पे होता नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई कॉन्ट्रडिक्शन हो, बट स्टिल जब भी कोई कोई रेज करता है कि आप वाइट राइस क्यों खाते हो या आप कॉफ़ी क्यों पीते हो, लाइक देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग अबाउट दैट। आई लव वाइट राइस, देयर इज़ अ रीज़न व्हाई आई हैव दोज। आई लव माई कॉफ़ी, देयर इज़ अ रीज़न व्हाई आई हैव दैट। देयर इज़ ऑलवेज 2-3 डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग सम थिंग्स। एक तरीका अगर आपको पसंद है तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे 2 तरीके गलत हैं, राइट। सो बेसिकली मेक श्योर यू ओपन फॉर लर्निंग, लेकिन कुछ एक चीज़ें हैं जो आपके साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, एंड दैट्स ओके, वो जो नहीं कनेक्ट किया वो मत लो, फाइंड योर ओन वेज ऑफ डूइंग दैट, लेकिन जहाँ आप कनेक्ट कर सकते हो उसको इम्प्लीमेंट करो एंड मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। सो बेसिकली दैट वाज इट अबाउट मी। नाउ आई नो आप लोगों ने बहुत सारे और क्वेश्चंस पूछे हैं फिटनेस से रिलेटेड और वेट गेन से रिलेटेड एंड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, जो ऑफ कोर्स इस वीडियो में मैं नहीं कवर कर रही हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स आई जस्ट वांटेड टू कीप इट वेरी पर्सनलाइज्ड सॉर्ट ऑफ, बट वो सारे क्वेश्चंस भी मैं आंसर करूँगी। सो उसके लिए आप मेरे शॉर्ट्स वीडियोज़ पे और मेरे यूट्यूब लॉन्ग वीडियोज़ पे भी कनेक्टेड रहो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को हिट करो, ताकि जो भी क्वेश्चंस आपने पूछे हैं उनके जवाब जैसे जैसे मैं आपके साथ शेयर करूंगी वैसे वैसे आप उनको देखते रहो। उसके अलावा भी बहुत सब कुछ मैं शेयर करने वाली हूँ, तो जैसे कि मैंने बोला इट्स ऑल अबाउट अ लर्निंग प्रोसेस, राइट। सो स्टे ट्यून्ड, सीखते रहो, इंप्लीमेंट करते रहो। नाउ यहाँ पे बस 2-3 क्वेश्चन हैं जो मैं आप लोगों के कवर करूंगी जो कि इस वीडियो के साथ फिट होते हैं। नंबर 1 जैसे सबने पूछा कि कंसिस्टेंसी, वर्क स्ट्रेस और वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मेंटेन करो, राइट। सो बेसिकली द सेम आंसर एज आई मेंशन बिफोर कि वो चीज़ आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, आपकी हेल्थ आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी लिस्ट में कितने नंबर पे आपने अपनी हेल्थ को रखा हुआ है, उस हिसाब से ही आप उतना ही कंसिस्टेंट और उतनी ही मोटिवेशन उस चीज़ के लिए दिखा पाओगे, राइट। सो एज आई सेड इनिशियली मेरा वेट लॉस इसलिए हुआ क्योंकि आई वॉज केयरलेस अबाउट माई ओन हेल्थ, राइट। लेकिन जब मुझे समझ में आया कि अब मुझे करना है, आई ऑलवेज केप्ट इट pretty much on the top of my list कि पूरे दिन भर में जो भी रूटीन होगा, बट आई स्टिल नीड टू मेक श्योर कि आई नीड टू फिट इन माई वर्कआउट, चाहे आधे घंटे का ही करूँ चाहे 1 घंटे का करूँ,
जितना भी टाइम अवेलेबल था, बट आई मेड श्योर आई डिड दैट, राइट। सो वो आपके अंदर से दैट विलिंगनेस नीड टू कम फ्रॉम इनसाइड यू, विद इन यू, कि जॉब से टायर्ड होने के बावजूद भी या स्ट्रेस इतना होने के बावजूद भी हाउ यू आर फिटिंग इन अ वर्कआउट, उसको आप किस नज़रिए से देखते हो। आपको वो एक टास्क लग रहा है या आपको लग रहा है कि वर्कआउट करने के बाद वो जो सारा बर्डन है वो चला जाएगा, यू विल फील गुड अबाउट योर सेल्फ। एंड व्हेन यू टेक थिंग्स दैट वे, और सिर्फ मैं फिटनेस की बात नहीं कर रही हूँ, आप जो भी अपने लाइफ में करना चाहते हो, जिस भी चीज़ के लिए पैशनेट हो, उसके लिए आपको जगह बनानी पड़ेगी अपने इस पूरे बिजी लाइफस्टाइल में। वो बैलेंस आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा ताकि यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन दैट वन थिंग। और इनफैक्ट जब आप वो चीज़ करोगे ना, इट मेक्स यू फील सो गुड एंड हैप्पी, इट मेक्स यू डबल प्रोडक्टिव। तो जो ये आपका वर्क का स्ट्रेस है या लाइफ का स्ट्रेस है, उसमें यू विल बी एक्टिंग एज अ बेटर पर्सन। आपके पास बेटर सोल्यूशंस होंगे, बेटर एनर्जी लेवल होगा उस चीज़ को टैकल करने के लिए, राइट। सो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू सी समथिंग, और जिस चीज़ को जिस तरीके से, जिस नज़रिए से देखोगे, उसी हिसाब से फिर आपका रिस्पॉन्स हो जाता है। एंड दैट इज़ हाउ यू सी कि आप उस चीज़ को कितना कंसिस्टेंटली फिर कर पा रहे हो और कितना नहीं कर पा रहे हो। एट द एंड ऑफ द डे, एज आई सेड प्रीवियसली एज वेल, ब्रेक्स और गैप्स हम सबके लाइफ में आते हैं, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग अबाउट दैट, बट व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज़ कि वो हफ्ते भर का ब्रेक या 10 दिन का ब्रेक या 2 दिन का ब्रेक जो भी हुआ है, उसके बाद मेक श्योर यू गेट बैक इन योर रूटीन। एज लॉन्ग एज यू डू दैट, यू आर ऑल गुड। इट्स अ जर्नी, कोई स्प्रिंट तो है नहीं कि एक हफ्ते में ही सब कुछ अचीव करना है। इट्स अ जर्नी, थिंग्स विल कीप ऑन मूविंग एट इट्स ओन पेस। मेक श्योर दैट यू स्टे इन दैट जर्नी से बाहर मत निकल के खड़े हो जाओ, स्टे इन दैट जर्नी, कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड। समबडी हैड आस्क्ड कि हाउ वाज माय चाइल्डहुड and was my family supportive? So I've had a very good childhood. As I said, I come from an army background. Family was super supportive, always. But there was always a lot of discipline, a structure in my life. So and the good thing is when your upbringing has been like that, it kind of reflects back how your adulthood is going to be. So that's how I kind of live. तो वो स्ट्रक्चर शुरू से ही है, बट ऑफ कोर्स इट्स नॉट एज गुड एज जब आप पेरेंट्स के अंडर रहते हो, यू हैव दैट स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर गोइंग ऑन। अब उतना स्ट्रिक्ट नहीं है डेफिनेटली, बट childhood has been great, and I think there was a lot of support from the family to do whatever you want to do, kind of an attitude which kind of gave me the push to test and try. I've done modeling back in the days when I was in uni as well. When I was doing my bachelor's, I did modeling then. I worked in a call center as well. So कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया. They were like test and try out things. We are always there. कभी किसी मुसीबत में हो, make sure you always contact the family first. All those kind of things that every parent do, I guess. But yeah, there was a lot of support, and there was a lot of support when I decided कि 20 साल की उम्र में I just wanted to move out of the country as well. I knew nobody in Australia. It was a completely brand new thing for me. So there was a lot of support, and I think that support that you get from your family and also from my husband now, it gives you those guts that you need, because you know that you've got your back. अगर कभी fall down होता भी है तो you will be looked after. That gives you a little bit more confidence, that चलो कुछ try करके देखते हैं, चलो कुछ risk लेके देखते हैं. I'm glad कि कोई ज़्यादा बुरा fall नहीं हुआ है अब तक, but at least I'm really blessed that I have got the kind of support that I needed. किसी ने पूछा इंडिया या ऑस्ट्रेलिया. Now of course I've been living in Australia for 15 years now. Australia has been awesome. It's been great living here. बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ achieve किया. Not just because I was in Australia, but I was all alone in Australia as well. उसका भी बहुत बड़ा योगदान है, becoming independent financially or in all other aspects of life. So that just molds you into a completely different person. Maturity आ जाती है, you become very very responsible. So Australia has been fantastic, but of course घर तो घर ही होता है. Of course I love India like nothing. So I do have plans to one day move back to India as well, because of course the whole family is there. So isolation factor definitely है, and we are not very social as well. Me and my husband, we like to keep to ourselves. So we have a little family. We do our own things. So eventually hopefully we get to go back to India one day, but for now love both countries. Now a lot of people have asked how to join my programs. Now of course program join करने के लिए description box, इस वीडियो के description box में भी मैंने एक लिंक छोड़ा है. उस लिंक को जाके आप वहाँ फॉर्म फिल कर सकते हो. फॉर्म फिल करने के बाद मैं आपको एक ईमेल भेजती हूँ जिसमें सारी प्रोग्राम की डिटेल्स आती हैं, राइट. नाउ आई नो अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट रिसीविंग दीज ईमेल्स, क्योंकि बहुत सारी ईमेल्स बाउंस बैक हो जाती है. किसी का इनबॉक्स फुल है या किसी ने गलत ईमेल एड्रेस डाल दिया है, तो इस वजह से ईमेल्स बाउंस बैक हो जाती है. इस वजह से आपको कई बार ईमेल्स मिलती नहीं है. और अगर ऐसा है कि आपने
आपने फॉर्म फिल किया है लेकिन आपको ईमेल नहीं रिसीव हुई है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक ईमेल आईडी भी दिया है जहाँ पे आप डायरेक्टली ईमेल भी कर सकते हो, राइट। नाउ होपफुली इस प्रोसेस को भी विल पुट टू एन एंड वेरी सून। आई एम वर्किंग ऑन बिल्डिंग माई ओन वेबसाइट एज वेल, तो होपफुली जब वो आ जाएगी तो ये फॉर्म फिल करने वाला और ये सब चक्कर भी खत्म हो जाएगा। बट फॉर नाउ, यू नो, इफ़ यू वांट टू join my programs, you can fill that form and wait for my email, and once you receive the email you can make the decision कि आपको program join करना है या नहीं करना है, right? Anyways, this video has become super duper long, so I'm gonna you know, end it right here, but as I said, stay tuned because there is a lot of you know, good videos that are coming your way where you'll get to learn so much, implement so much and grow so much. So on that note, stay fit, stay fierce. Bye guys.